کے بعد گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن غور سے سنیے گا۔ صاحب جس بچے کا میتھ مضبوط ہو اسے عقل والا مانا جاتا ہے، جو غریب جس کا مضبوط ہو اسے عقل والا مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سائنسداں بننے کے لیے میتھ کمپلسری ہے، انجینئر بننے کے لیے میتھ کمپلسری ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے میتھ کمپلسری ہے۔ صاحب آپ کو مسند افتاء پہ بیٹھنے کے لیے علم قریب کمپلسری ہے، ورنہ فرائض کا فیصلہ کیسے انجام دیں گے؟ لیکن میری بات اور سے سنیے گا، ان سارے عقل والوں کو بیٹھایا جائے، بیٹھا کر کے کہیے اے عقل والوں بیٹھ جاؤ، تم امریکہ کے رہنے والے ہو، چائنا کے رہنے والے ہو، رشیا کے رہنے والے ہو، ناشا میں رہ کر چاند پہ قدم رکھنے والے ہو، بیٹھ کر کے یہ بتاؤ تم سارے عقل والے ہو، بتاؤ اس عقل والوں علم ریاضی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں مولانا علم ریاضی کی ابتدا گنتی سے شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا کاؤنٹنگ سے ہے، گنتی سے ہے۔ میں نے کہا گنتی لکھنا شروع کرو، بچے نے لکھنا شروع کیا، ایک لکھا، دو لکھا، تین لکھا، چار لکھا، پانچ لکھا، 100 تک لکھ کر ٹھہر گیا۔ حافظ اظہار صاحب بولے ٹھہرو، ابھی ٹھہرو مت اور آگے لکھو، اس لیے کہ جب تک گنتی مکمل نہ ہو جائے لکھتے رہنا۔ اتنے میں صاحب خادم صاحب کی نظر پڑی ماسٹر صاحب کی، کہا مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، زندگی ختم ہو جائے گی مگر کبھی گنتی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ 100 کے بعد 101 ہوگا، 1000 کے بعد 1001 ہوگا، لاکھ کے بعد 1,00,001 ہوگا، کروڑ کے بعد 1 کروڑ ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کاؤنٹنگ کرے پھر بھی گنتی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ 1450 برس پہلے اللہ نے قرآن میں کہا لا تحدث، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی حدود اور دائرے میں نہیں لا سکتے، کبھی تم اس کی گنتی مکمل نہیں کر سکتے، اس لیے ساری دنیا مل کر کبھی کاؤنٹنگ مکمل نہیں کر سکتی۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر گنتی ختم نہیں ہو سکتی۔ 2021 کے بعد 2022 آئے گا، 2022 کے بعد 2023 آئے گا، 2023 کے بعد 2500 آئے گا، لیکن غور سے میری گفتگو سننا۔ چلو صاحب گنتی کی انتہا نہیں معلوم لیکن گنتی کی ابتدا تو معلوم ہے۔ کہا ہاں مولانا پہلے 9 تھا، 9 سے پہلے 8 تھا، 8 سے پہلے 7 تھا، 7 سے پہلے 6 تھا، 6 سے پہلے 5 تھا، 5 سے پہلے 4 تھا، 4 سے پہلے 3 تھا، 3 سے پہلے 2 تھا، 2 سے پہلے 1 تھا۔ میں نے کہا 1 سے پہلے بچہ ٹھہر گیا، کہا مولانا 1 سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کہا پھر یہ 1 کہاں سے آیا؟ کہا یہ 1 اپنے آپ آیا ہے۔ کہا 1 کو کس نے بنایا؟ کہا 1 کو کسی نے نہیں بنایا۔ کہا 2 کو؟ کہا اسی 1 نے 2 کو بنایا ہے۔ 3 کو؟ کہا اسی 1 نے 3 کو بنایا ہے۔ کہا 4 کو؟ کہا اسی 1 نے 4 کو بنایا ہے۔ 5 کو؟ کہا اسی 1 نے 5 کو بنایا ہے۔ کہا 100 لاکھ کروڑوں کو؟ کہا اسی 1 نے 100 کروڑوں لاکھوں اربوں کو بنایا ہے۔ کہا اگر وہ 1 نہ ہوتا، کہا 1 نہ ہوتا تو یہ 2 نہ ہوتا، 1 نہ ہوتا تو 3 نہ ہوتا، 1 نہ ہوتا تو یہ 100 نہ ہوتے، 1 نہ ہوتا تو یہ 1000 نہ ہوتے، 1 نہ ہوتا تو یہ کروڑ نہ ہوتے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ یہ جو 1 ہے یہ سب سے زیادہ شکتیشالی ہے یا یہ کروڑوں اربوں جو ہے یہ شکتیشالی ہے؟ بول پڑے نہیں مولانا، یہ کروڑوں بننے والے ہیں اور وہ 1 بنانے والا ہے، اس لیے وہی 1 ہے جو اکیلا ہے مگر سب سے بڑا طاقتور ہے، ایکتا ہے مگر سب سے زیادہ شکتیشالی ہے۔ میں نے کہا عقل والوں نے آج کہا کہ وہ 1 طاقتور ہے مگر قرآن نے 1450 برس پہلے کہا محبوب اعلان کر دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محبوب اعلان کر دیجئے اللہ 1 ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے پروردگار نے بنایا ہے۔ کبھی تو میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حوصل ہورا، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور کا
اچھا یہ بتائیے جتنے لوگوں کو تقریر سمجھ میں آئی نہیں آئی تو ہاتھ مت اٹھائیے گا، اور سمجھ میں آئی تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب سارے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ صاحب یہی فرق ہے، آج دنیا میں کوئی بھی علم ہے اس علم کی انتہا اللہ کی وحدانیت تک ہے، اس علم کی انتہا رسول اللہ کی رسالت تک ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن عقل والوں سے خطاب کرتا ہے، اے عقل والوں میری طرف دیکھو، اے علم والوں میری طرف دیکھو۔ اب چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، رائٹر ہو، ماسٹر ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جب علم کی انتہا کو پہنچے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہی وجہ ہے ساری دنیا حیران ہے، ساری دنیا پریشان ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ چہار جانب سے جس مذہب پر حملے ہو رہے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، چہار جانب سے جس مذہب کے عقائد پہ حملے ہو رہے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، چہار جانب سے جس کے معمولات پر حملے ہو رہے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کے ذہن دل و دماغ کو آوارہ بنا دیا گیا، آج ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو آوارہ بنا دیا گیا، آج ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو آوارہ بنا دیا گیا۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم جتنا بڑھے گا اتنا ہی اسلام ترقی کرے گا، اس لیے دنیا کو تعلیم کے دھارے سے الگ کیا جائے، دنیا کو تعلیم کے دھارے سے الگ کیا جائے۔ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی، جس میں 40 سال آمنہ کے لال نے کردار سے اسلام کی تبلیغ کی، اور 23 سال مصطفیٰ جان رحمت زبان سے بھی تبلیغ کرتے رہے، کردار سے بھی آمنہ کے لال تبلیغ کرتے رہے۔ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود سب سے زیادہ جس ذات کی مخالفت کی گئی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ میرا چیلنج ہے، اگر ایک مخالفت ایسی ہو جائے تو نہ کوئی عالم ٹکے گا، نہ کوئی خطیب ٹکے گا، نہ کوئی شاعر ٹک پائے گا۔ صاحب اگر کوئی شاعر بات پڑھ رہا ہو اور بغل میں کوئی کہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا، صاحب اس کی شاعری وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو، ادنا پاگل انسان کھڑے ہو کر کے مخالفت شروع کر دے تو صاحب اس کا سارا دل و دماغ چینج ہو جائے گا۔ لیکن کبھی تم نے آمنہ کے لال کی زندگی کا ملاحظہ کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان طائف میں پتھر کھا رہے ہیں اور آقا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابو لہب لوگوں سے کہتا، لوگوں ان کی باتیں نہ سننا، آقا مسجد حرم میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ادھر ابو جہل ابو لہب کھڑے ہو کر اعلان کرتے، لوگوں سب کی باتیں سننا مگر آمنہ کے لال کی بات نہ سننا۔ ایسے نازک دور میں صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خاطر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، محبوب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور میرا کام ہے لوگوں کے دلوں کو بدل دینا۔ جب اللہ نے بدلا تو ایسا بدلا کہ خاندان مخالفت میں کھڑی ہے، صاحب رشتہ دار مخالفت میں کھڑے ہیں، پورا قبیلہ کنبہ اور مکہ مخالفت میں کھڑا ہے، پوری دنیا مخالفت میں کھڑی ہے، اور آمنہ کے لال کا چرچا اللہ نے پوری دنیا میں فرما دیا۔ ہر زبان پر صرف ایک نام ہے، دین ہو تو مذہب اسلام ہو، پیشوا ہو تو محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کتاب ہو تو قرآن عظیم کی طرح ہو۔ جو بھی نبی کی گفتگو سنتا ان کا ہو جاتا، جو بھی نبی کے قریب جاتا انہی کا ہو جاتا، جو نبی کی صحبت میں بیٹھتا انہی کا دیوانہ ہو جاتا۔ کفار مکہ چاروں طرف بیٹھ کر کہتے، اے لوگوں سب کی باتیں سننا مگر آمنہ کے لال کی باتیں نہ سننا۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو سنتا صاحب انہی کا دیوانہ ہو جاتا۔ آج کون ہے جو ہماری گفتگو سن کر ہمارا دیوانہ ہو؟ کون ہے جو ہمارا کردار دیکھ کر ہمارا دیوانہ ہو؟ کون ہے جو ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر ہمارا دیوانہ ہو؟ غور سے میری بات سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا یہودیت کا حملہ کہاں ہے، نصرانیت کا حملہ کہاں ہے۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ آج مسلم نوجوان لڑکے اور
लड़कियों के दिमाग को बदला जा रहा है, उनकी सोच को बदला जा रहा है, उनकी फिक्र को आवारा बनाया जा रहा है, उनके किरदार और कैरेक्टर को आवारा बनाया जा रहा है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों सुनना, तब जाकर तुझे बात समझ में आएगी। आओ आओ जरा मैं तुझे बताना चाहूंगा। मेराज की शब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेराज की शब तशरीफ ले जा रहे हैं, बुलाने वाला रब्बुल आलमीन है। आका तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन आका के सामने दो प्याला पेश करते हैं, एक प्याले में शराब है और एक प्याले में दूध है। आमिना के लाल के हाथों में प्याला मौजूद है। रब्बे करीम फरमाता है, महबूब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये दो प्याला है, आप दोनों में से जिसे चाहे पी सकते हैं। आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। गौर से सुनना मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं बनाया, तुम मजबूर नहीं हो। तेरे सामने नकाब भी है और तेरे सामने बेपर्दा वाले लिबास भी है। अब तेरी मर्जी कि तू चाहे तो बेपर्दगी वाला लिबास पहने, तू चाहे तो पर्दा वाला लिबास पहने, लेकिन सुनो इज्जत तो उसमें है तो जिस लिबास को पहनने के बाद एक औरत घर की चार दीवारी में भी उसकी इज्जत महफूज रहे और चार दीवारी के बाहर भी उसकी इज्जत महफूज रहे। और से मेरी बात सुनना, आज जमाना शराब के नशे में डूब रहा है, लोग जुए के नशे में डूब रहे हैं, लेकिन आओ आमिना के लाल की जिंदगी देखो। यहूदियों ने मीटिंग की और कहा कि 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में इतनी मुखालफत के बावजूद मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम को कैसे फैला दिया। कहा मुसलमानों के पास दो चीजें ऐसी हैं कि जब तक मुसलमान इस पे अमल करते रहेंगे इस्लाम तेजी के साथ फैलता रहेगा। कहा क्या? कहा नंबर 1 कुरान की तालीम और नंबर 2 सीरत मुस्तफा। जब तक मुसलमानों के पास ये दो चीजें रहेंगी, कुरान की तालीम और आमिना के लाल का किरदार, इस्लाम यूं ही तेजी से फैलता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को रोक नहीं पाएगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इंसान तो बहुत है मगर किरदार मुस्तफा किसी के पास नहीं है। किताबें तो बहुत है मगर कुरान जैसी किताब किसी के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? कुरान पढ़ोगे तो कुरान तुझे बताएगा, कुरान तुझे बताएगा पीना क्या है, खाना क्या है। कुरान मुझे बताता है चलना कैसे है, बोलना कैसे है। कुरान मुझे बताता है समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। कुरान मुझे बताता है माँ बाप का अदब कैसे करना है, बीवी बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी करनी है। उनके नबी ने उन्हें बताया है। कहा क्या बताया? कहा उनके पैगंबर ने कहा शराब पीना हराम है, उनके पैगंबर ने कहा है जुआ खेलना हराम है, उनके पैगंबर ने कहा है नाच गाना बाजा हराम है, उनके पैगंबर ने कहा है माँ बाप को सताना हराम है, उनके पैगंबर ने कहा है एक खुदा की इबादत की जाएगी, उनके पैगंबर ने कहा है आपस में मोहब्बत के साथ इत्तेहाद के साथ जिंदगी जी जाएगी, उनके पैगंबर ने कहा है झूठ नहीं बोला जाएगा, उनके पैगंबर ने कहा है रिश्वत नहीं ली जाएगी, उनके पैगंबर ने पाकीज़ा माशरे को जन्म दिया है, उनके पैगंबर ने पड़ोसियों का हक बताया है और कहा है हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, उस वक्त तक खाना नहीं खाना जब तक कि तेरा पड़ोसी खाना नहीं खा ले। जब तक मुसलमानों के अंदर नबी का ये किरदार जिंदा रहेगा, क्रिश्चियन के पास होगा मुसलमान हो जाएगा, ईसाई उनके पास होगा मुसलमान हो जाएगा, यहूदी उनके पास होगा मुसलमान हो जाएगा। मगर आज अफसोस है कि आज मुसलमानों के पास नाम तो मुसलमान है, लेबल तो इस्लामिक है, मगर आज हमारा किरदार इस्लामिक नहीं है, आज हमारा कैरेक्टर इस्लामिक नहीं है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा ये शहादत रहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐ मेरी कौम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, इस्लाम बड़े बाउसूल मजहब का नाम है। दुनिया में सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। दुनिया में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान अजीम है। गौर से सुनना,
आमिना के लाल मेराज की शब में है, सामने 2 प्याला है। महबूब आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। आमिना के लाल ने शराब को ठुकरा दिया और दूध को पी लिया। जिब्रील अमीन मुस्कुराते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमा रहा है महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है। अगर आप शराब पी लेते आपकी कौम शराबी हो जाती। ऐ महबूब आपने शराब को छोड़ दिया और दूध को पी लिया। ऐ मेरे महबूब अब आज के बाद ये कानून बन गया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। ऐ महबूब आपने शराब को छोड़ दिया तो अब किसी के लिए शराब पीना जायज नहीं होगा। महबूब आपने दूध को पिया है, आपने फितरत को अख्तियार किया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज तुम बर्थडे पार्टियों में जाते हो, आज तुम शादी की पार्टियों में जाते हो, आज तुम नए साल की पार्टियों में जाते हो, आज तुम फ्रेंडों की पार्टियों में जाते हो, दोस्तों की पार्टियों में जाते हो। कॉलेज में पढ़ने वाली शहजादियों, आज तुम अपनी सहेलियों की पार्टियों में जाती हो। बड़ी वीआईपी पार्टी होती है तुम्हारी, तुम्हारा दोस्त उससे कहता है सुन शादी की पार्टी है, सारी दुनिया सो गई है, मैंने बहुत कीमती शराब मंगाई है, माज़अल्लाह ये शराब की बोतलें हैं, आजा जरा हम पी करके अपनी पार्टी को बावकार बनाते हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तेरा कोई दोस्त या तेरा कोई साथी या इस्लाम की मुकद्दस बेटी को तेरी कोई सहेली पार्टियों में ऐसी फरमाइश करती है कि शराब पी ले, कह देना सुनो मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी पार्टी में आ गया हूँ, लेकिन याद रखना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पहले हो। ऐ मेरे दोस्त, मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त माफ करना मैं कभी शराब नहीं पी सकता। तेरा दोस्त उससे कहेगा बता तू कीमती शराब है, 50,000 की शराब की बोतलें हैं, 5 लाख की शराब की बोतलें हैं, तू 50 रुपए की दूध पिएगा और 5 लाख की शराब नहीं पिएगा। कह देना सुनो हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान ने कहा है नबी ने जो पिया है उसे तुम पीना और नबी ने जिसे छोड़ा है उसे तुम। आजा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे उसे तुम, और थोड़ी आवाज ऊंची करके उसे तुम छोड़ देना। कह देना ये मेरे दोस्त पार्टी तेरी है ठीक है, लेकिन ये जिस्म नबी का गुलाम है, ये किरदार आमिना के लाल का गुलाम है, हम कभी जिंदगी में शराब नहीं पी सकते। तेरा हिंदू दोस्त होगा, तेरा यहूदी दोस्त होगा, तेरे कॉलेज का फ्रेंड होगा, थोड़ी देर के लिए उसे तकलीफ होगी, अब उसे बताना मेरे दोस्त मैं भी नहीं पीता, तुम भी शराब न पियो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। तुझे पता है जब इंसान शराब पी लेता है माँ की अजमत भूल जाता है, बाप का प्यार भूल जाता है, बड़ों का अदब भूल जाता है, छोटों का एहतराम भूल जाता है, माँ की अजमत भूल जाता है, कभी बीवी को गालियां देता है, कभी बच्चों को गालियां देता है, कभी माँ को गालियां देता है, कभी बड़ों को गालियां देता है। एक शराबी माशरे को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए जिंदगी में सब पीना मगर कभी शराब न पीना। वो कहेगा मेरे दोस्त अगर बात ऐसी है तो कसम खुदा की न तू शराब पीना ना आज के बाद हम शराब पिएंगे। मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से सबसे पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि हम जिंदगी में सब पिएंगे मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। दोनों हाथों को उठाकर जिंदगी में कभी शराब, जिंदगी में कभी शराब। भारत में सबसे ज्यादा जो तलाकें हुई वो मुस्लिम महिलाओं की वो शराब की वजह से हुई। महिलाएं खोला लेने के लिए मजबूर हो गई। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वे ये आया कि 1.5 लाख तलाकें तो सिर्फ शराब की वजह से हुई। शौहर शराब पी कर आता था, बीवी को गालियां देता था, बच्चों पे जुल्म करता था, माँ बाप
को सताता था। यही वजह है आप जब किताबों का मुताला करेंगे आपको पता चलेगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में नकल किया, साहब एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं, एक नौजवान की कब्र है, असर के बाद फटती है, कब्र से बाहर उसका सर निकलता है, निकलने के बाद उसका सर गधे की शक्ल का होता है, बनता है और 3 बार गधे की तरह आवाज करता है। दुनिया में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, आवाज करता है और फिर कब्र के अंदर चला जाता है। बुजुर्ग बड़े परेशान होते हैं, अल्लाह अकबर क्या माजरा है, कब्रिस्तान वालों में ये कैसा शख्स है जिसकी कब्र रोजाना फटती है और रोजाना इसका सर बाहर गधे की शक्ल में निकलता है और गधे की आवाज चीखता है और चीखने के बाद फिर कब्र के अंदर चला जाता है। लोग बताते हैं हुजूर ये बूढ़ी औरत जो चरखा चला रही है ये लड़का उसी का बेटा है, लेकिन माजरा ये है ये रोजाना शराब पी करके आता और इसकी माँ रोजाना कहती बेटा शराब न पी, शराब आमिना के लाल ने हराम किया है, शराब को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज करार दिया है, शराब को कभी न पीना। तो बेटा कहता माज़ल्लाह चुप रह, क्या गधी की तरह रोजाना आवाज निकालती रहती है। अल्लाह, एक रोज माँ के दिल को ये बात नागवार गुजरी, माँ रोजाना अपने बेटे को शराब के बारे में समझाती, बेटा शराब न पीना। अचानक एक दिन गुस्से की हालत में आता है और माँ के सामने बकवास शुरू कर देता है और साहब माँ की बद्दुआ उसे लगती है। जब वो मरता है तो मरने के बाद उसकी सजा ये मुकर्रर होती है कि उसने माँ को कहा था कि क्या तुम गधी की तरह आवाज निकालती हो। आज हर रोज जब असर की नमाज हो जाती है तो रोजाना कब्र से उसकी सूरत निकलती है और गधे की तरह चीखता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने को बता रहा है, लोगों सबका गुस्ताख बनना मगर कभी माँ का गुस्ताख न बनना, सबका गुस्ताख बनना मगर कभी बाप का गुस्ताख न बनना। आज हमारी कौम के नौजवानों की ज़बानें तेज हो गई है, कभी शराब पीकर माँ बाप पे जुल्म करता है, कभी जुआ खेलकर माँ बाप पे जुल्म करता है, कभी सट्टे में और IPL में पैसा हार कर माँ बाप पे जुल्म करता है, कभी पैसे को शराब में लुटाकर घर में आकर बीवियों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जिंदगी में सब करना मगर कभी शराब न पीना, शराब के करीब न जाना। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। कुरान ने कहा ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में रहना तो कभी नमाज के करीब न आना। आज लोग कहते हैं मौलाना हमारी औलादें नेक नहीं होती, हमारी औलादें अच्छी नहीं होती। मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए, मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए मेरी बेटी नेक हो जाए। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम चाहते हो तुम्हारी औलादें नेक हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें नेक हो, तो पहले तुम्हें नेक बनना होगा, पहले तुम्हें अच्छा बनना होगा। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप शराब भी पिए और बच्चे नेक बन जाए, माँ बाप एक साथ बैठकर सिनेमा देखे बच्चे नेक बन जाए। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप बैठकर पूरी रात यूट्यूब पे फिल्में और ड्रामा देखे और औलादें नेक बन जाए। नहीं, बच्चों को नेक बनाना है तो माँ को नेक बनना होगा, बच्चों को नेक बनाना है तो बाप को नेक बनना होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक माशरा बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि अचानक सोसाइटी में बिगड़ाव पैदा हो जाता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आज 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% बच्चे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, प्रोफेसर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, साइंटिस्ट बनने के लिए सिलेबस मौजूद है। लेकिन एक माँ चाहती है मेरा बेटा वफादार बन जाए, है कोई सिलेबस? एक बाप चाहता है मेरा लाडला मेरा हो जाए, है कोई सिलेबस? एक बीवी चाहती है मेरा शौहर मुझसे प्यार करने वाला हो जाए, है कोई सिलेबस? साहब याद रखिए, बच्चे चाहते हैं मेरा बाप मुझसे प्यार करने वाला हो जाए, है कोई आपके पास सिलेबस? भाई चाहता है भाई की मोहब्बत हो जाए, है कोई आपके पास सिलेबस? पड़ोसी चाहता है कि पड़ोसी मुझसे प्यार करे, है कोई आपके पास सिलेबस? नर्सरी से लेकर PhD तक कोई ऐसी किताब नहीं
है जिसमें ये पढ़ाया जाता हो स्कूलों में कि माँ का अदब ऐसे करो, बाप से गुफ्तगू ऐसे करो, बहन से मोहब्बत ऐसे करो, पड़ोसी से प्यार ऐसे करो, बड़ों की इज्जत ऐसे करो। यही वजह है बेटा डॉक्टर बन जाता है मगर माँ को गालियां देता है, बेटा प्रोफेसर बन जाता है मगर भाई की शिकायत करता है, बेटा इंजीनियर बन जाता है मगर बहन को गालियां देता है, पड़ोसी बहुत पढ़ा लिखा गांव का प्रधान बन जाता है मगर पड़ोसियों का ख्याल नहीं करता। साहब इंसानों को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने जो सिलेबस दिया उस सिलेबस का जिक्र कुरान ने यूं किया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनने के लिए अलग सिलेबस है, इंसानों को इंसान बनाने के लिए सीरत मुस्तफा तुम्हारे लिए सिलेबस है, तुम्हारे लिए सिलेबस है। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, बोले ना इजाजत, आप लोग घबरा नहीं ना रहे हैं? इजाजत है, बोले ना? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। अच्छा मजमे में कोई नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर खड़े होकर नारा लगा दे? एक नौजवान, माशाअल्लाह, सारे में जवाब दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए ठीक है, मैं जानना चाह रहा था कि साहब माशाअल्लाह के लोग जगे हैं और बेदार है कि नहीं, ताकि मैं अपने मौजूद सुखन को आगे बढ़ाऊं। इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। ये जलसे इसलिए नहीं सजते कि हमारी बेटियां अगर जलसों में आ गई तो फिर यहाँ से आवारा आई है तो आवारा बनकर जाए, नहीं, बल्कि इन जलसों का मकसद है शराबी आए तो नमाजी बनकर के जाए, जुबारी आए तो मुत्तकी परहेजगार बनकर जाए, बेपर्दा लड़की आए तो बापर्दा बनकर जाए, माँ बाप के गद्दार बेटे आए तो यहाँ से उठे तो वफादार बनकर के जाए। जलसों का सबसे बड़ा मकसद यही है। मुझे लगता है कि आपका भी मकसद यही होगा, आपके भी जलसा कराने का मकसद यही होगा। सुल्तान रज़ा इसी हवाले से और इसी ज़िम्न से गुफ्तगू करना चाहता है। आज साहब सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया कहती है, दुनिया तरक्की कर गई है। बताओ आज इसमें जितने लोग मजमे में बैठे हैं इसमें 99% लोग उससे भी आगे कहिए कॉलेज स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। साहब लड़के की शक्ल में हो या लड़कियों की शक्ल में, पूरी दुनिया की तरक्की क्या है मुझे बताइए? पूरी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद का सफर है। यानी सारी दुनिया की तरक्की जो सबसे ज्यादा मुल्क में तरक्की याफ्ता है और चांद पे कदम रखता है। आज लोग कहते हैं क्या मौलाना, कोई कुरान पढ़कर चांद पर जाएगा, कोई कुरान पढ़कर चांद पर जाएगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कुरान पढ़कर चांद पे जाने की बात करते हो? आओ मेरी गुफ्तगू का एक जुमला पहले गौर से सुनो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु मिराज की शब में है, जन्नत में आका जिब्रील अमी के साथ टहल रहे हैं, एक कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। आका पूछते हैं जिब्राइल ये किसकी तिलावत की आवाज है? जिब्रील अमी कहते हैं आका ये आपके मुकद्दस सहाबी हजरत नुमान है। या रसूल अल्लाह ये नुमान है जिनकी तिलावत की आवाज फरिश्तों को जन्नत में सुनाई जा रही है। आका फरमाते हैं बेशक नुमान अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है। आज उसी माँ की बड़ा तासर है कि नुमान मदीने में कुरान पढ़ता है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाती है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाती है। और से मेरी बात सुनिएगा साहब, ये माँ की खिदमत की तरक्की ये कि साइंटिस्ट उठे तो चांद पर पहुंचे, लेकिन एक बच्चा जब कुरान दिल से पढ़े तो उसकी आवाज जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचे। लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा हमें ताना देते हो कुरान पढ़कर कोई साइंसदान बनेगा। मैं कहता हूँ कुरान नहीं होता तो आज साइंस का वजूद नहीं होता, कुरान नहीं होता तो आज इल्मे हयातियात का वजूद नहीं होता, कुरान नहीं होता तो आज ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया का वजूद होता। आज कुरान नहीं होता आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ, भारत की 2 महिलाओं ने चांद पे कदम रखा, एक जिसे सुनीता विलियम कहते हैं, दूसरा जिसे कल्पना चावला कहते हैं। 100 साल पहले इन्होंने चांद पे कदम रखा। क्या 500 साल पहले कोई चांद पे जाने का ख्वाब देखता था? क्या कोई 1000 साल पहले चांद पे जाने का ख्वाब देखता था? दुनिया में साइंटिस्टों का बोलबाला नहीं था, कोई वजूद नहीं था। लेकिन 1450 बरस पहले आमिना के लाल फरमाते हैं मेरे साहब
میں کیا دکھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آسمان میں چاند دکھ رہا ہے۔ کہا کیا کوئی انسان زمین سے اٹھے اور چاند پہ چلا جائے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں ایک وقت آنے والا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ قسم ہے اس چمکتے چاند کی، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ سواری بنائیں گے اور چاند کے اوپر چلے جائیں گے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا ناسا نے آج چاند پہ قدم رکھا، قرآن نے 1450 برس پہلے چاند پہ جانے کی خبر دے دی۔ صاحب امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ جو اسلام قبول کر لیے امت اجابت ہے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا امت دعوت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا جب قرآن نے 1450 برس پہلے کہا انسان چاند پہ جائے گا تو کوئی مولوی آج تک چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ کوئی حافظ آج تک چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ کوئی محدث مفکر آج تک چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ تو قرآن نے یہ مسئلہ بھی صاف کر دیا، کہا فما لهم لا يؤمنون، اور چاند پہ جانے والے چاند پہ چلے گئے مگر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کوئی ایمان والا چاند پہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو جائے گا وہ خدا کی قدرت دیکھ کر ایمان لائے گا۔ اور قرآن نے کہا یؤمنون بالغیب، ایمان تو بغیر دیکھے مان لینے کا نام ہے۔ اب سلطان رضا کو کہنے دیجئے غور سے میری بات سننا، اسلام کے مقدس شہزادے اور شہزادیوں، اب جب سنیتا ولیم نے چاند پہ قدم رکھا، چاند سے نیچے اتری، لوگوں نے پوچھا سنیتا ولیم تو نے چاند پہ بہت کچھ دیکھا مگر عجوبہ کیا دیکھا؟ کہا سنو میں جب چاند پہ گئی تو جتنے سائنٹسٹ مجھ سے پہلے گئے سب کے نام کی تختیاں اور نشانیاں چاند پہ موجود ہے، مگر ایک ایسا ویکتی بھی ہے جو چاند پر گیا نہیں مگر اس کی نشانی چاند کے سینے میں موجود ہے۔ کہا وہ انسان کون ہے؟ کہا وہ انسان کوئی اور نہیں مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ جب کفار مکہ نے ان سے کہا تھا آپ نبی ہیں تو زمینی نہیں آسمانی معجزہ دکھلائیے، تو ان کے پیغمبر نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی چاند کے سینے میں ان کی انگلیوں کی نشان موجود ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا سورج ان کے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو ساری دنیا کے عقل والے، امریکہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ساری دنیا کے عقل والوں کی انتہا چاند تک، عقل والوں کی انتہا چاند تک۔ ارے چاند تیری ابتدا کیا ہے؟ چاند کہتا ہے مجھ سے مت پوچھ، میری ابتدا تو نور مصطفیٰ ہے۔ تو کبھی تو ایک شاعر نے کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ سبحان اللہ۔ کیوں چاند کے فراق میں لوگ پوری زندگی ختم کر دیے اور چاند رخ مصطفیٰ کو دیکھنے میں زندگی ختم کر رخ مصطفیٰ کو دیکھنے میں زندگی ختم کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اس ذات کی طرف دیکھے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہودیوں نے کہا مسلمانوں کو روکنا ہے، ایک کام کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیم مسلمانوں کی زندگی سے نکالنی ہوگی، سیرت مصطفیٰ کو مسلمانوں کی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ کہا تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کہا مسلمانوں کی زندگی کو
بدलना होगा। कहा मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, कहा मुसलमान को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। कहा कि तलवार के जरिया, कहा नहीं। कहा बम बारूद के जरिया नहीं। कहा तो फिर करना क्या होगा? कहा मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों के किरदार को बदल देना होगा। कहा उनका किरदार कैसे बदलेगा? इसलिए कि वो तो कुरान सुनते हैं, वो तो नबी की सीरत सुनते हैं, उनकी बेटियां सीरत फातिमा सुनती है, उनके बच्चे नबी की नाते सुनते हैं, उनके बच्चे इमाम हुसैन का किरदार सुनते हैं। उनके सीरत को बदलना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा हम बदल देंगे, उसके लिए हमें काम करना होगा, उनके घर के अंदर जाना होगा। कहा मुसलमानों के यहाँ बहुत पर्दा है, मुसलमानों के यहाँ इतना पर्दा है कि कोई यहूदी मुसलमान के घर में नहीं जा पाएगा। कहा तो फिर कहा पर्दे का हाल ये है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब बात पर्दे की आ गई, कहा पर्दे का हाल ये है कि कोई मुस्लिम लड़की इतनी जोर से कुरान की तिलावत नहीं कर सकती कि घर से उसकी आवाज बाहर आए। जब आवाज पे इतना पर्दा है तो उनकी इज्जत पे कितना पर्दा होगा, उनकी आबरू पे कितना पर्दा होगा। क्या तुम्हें याद नहीं है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बेटी है, इतने में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, चले आ रहे हैं। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, आज तेरे पास पर्दा नहीं रह गया। तू अपनी तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड करती हो, तुम अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप पे भेजती हो, तुम शादी की पार्टियों में जाकर सेल्फियां लेती हो, तुम्हारे घर जिसकी तबीयत वही चला आता है। तेरा चचेरा भाई तुझसे हंसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा बहनोई तुझसे हंसे कोई तुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरा ममेरा भाई तुझसे गुफ्तगू करे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, सबसे तू बात नहीं कर सकती, उससे बात करेगी जिससे तेरा निकाह हराम है। याद रखना, तुम तो ये सोचती हो, तुम कहोगी इस्लाम जालिम जुल्म करता, नहीं, इस्लाम जुल्म नहीं करता। इस्लाम तेरी आबरू की हिफाजत की बात करता है, इस्लाम तेरी रुख की हिफाजत की बात करता है, इस्लाम तेरे जल्दों की हिफाजत की बात करता है। और से मेरी बात सुनना, आज जिसे जो चाहा आ गया। साहब औरतें समझती है हम जिस मर्द को चाहे देखे, हमारे लिए कोई पर्दे की बात नहीं है। मर्द के लिए पाबंदी हो औरत को नहीं देखे, नहीं, इस्लाम कहता है जिस तरीके से मर्द का किसी औरत को देखना दुरुस्त नहीं, वैसे ही किसी औरत के लिए भी मर्द का देखना दुरुस्त नहीं है। यही वजह है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बेटी है, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना और अंधे सहाबी रसूल है, चले आ रहे हैं। आका फरमाते हैं आयशा घर के अंदर चली जाओ। आयशा कौन है? हम सब की अम्मी जान है। हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह क्यों घर में चली जाए? कहा वो देखो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ रहे हैं। जवाब सुनना, हम सब की माँ का कोई मामूली औरत नहीं थी हजरत आयशा सिद्दीका, आलिमा थी, फाजिला थी, मुफ्तिया थी, उनसे बुखारी से लेकर तमाम किताबों में हदीसें मौजूद है। साहब कहती है या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, इन्हें तो कुछ दिखता नहीं है, तो इनके सामने मैं रहूं या हट जाऊं? सुनो, आका फरमाते हैं आयशा वो तो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करने वाली इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, करोड़ों लोग तेरी तस्वीर को देखकर गुनाह करते हैं, और एक बार में जितने लोग देखेंगे वो सबका गुनाह तेरे नाम आमाल में लिखा जाएगा। बता सजदा तू नहीं कर पाती, लेकिन जहन्नम की आग जब तेरे जिस्म पे पड़ेगी तो तेरे ये नर्म और नाजुक जिस्म कैसे बर्दाश्त करेंगे? कभी तूने सोचा है? इसलिए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, सेल्फी वेल्फी वाली कभी न बनना। सुनो कैसी औरत बनना है, कैसी पाकीज़ा औरत बनना है, गौर से सुनना। साहब पीराने पीर दस्तगीर को कौन नहीं जानता? सारी दुनिया में गौस आज़म का चर्चा है, हर जबान पे गौस आज़म का चर्चा है। मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और वो है तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह क्या पूछना है? नबी के शहजादे हैं गौस आज़म, हसनी और हुसैनी है गौस आज़म, लेकिन किस माँ ने गौस को गौस बनाया है? किस बाप ने गौस
गौस को गौस बनाया है। जब माँ पाकीज़ा हो तो औलादे पाकीज़ा होती है, जब बाप पाकीज़ा हो तो औलादे पाकीज़ा होती है। सिर्फ मज़ारों पे जाकर ताबीज़ें लिखवा लेने से तेरी नस्लें अच्छी नहीं हो जाएगी, सिर्फ जाकर पापाओं से ताबीज़ें लिखवा लेने से तेरी औलादें अच्छी नहीं हो जाएगी। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा हमें खुद को पाकीज़ा बनाना होगा, हमें खुद को अच्छा बनाना होगा, हमें खुद को बाशऊर और नेक बनाना होगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, क्या आपको याद नहीं है हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कौन है? कहा ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी है। साहब नफ्स से इतना मुजाहिदा किया कि नाम ही उनका जंगी रख दिया गया। साहब जंगी रख दिया गया। नाम तो मूसा था मगर नेक इतने थे कि उन्हें उनकी कुन्नियत और तखल्लुस अबू सालेह हो गई। कहा ये सालेह के बाप है, नेकियों के बाप है। आलम ये था कि हम तो मुजाहिदा करते, कुछ नहीं खाते पीते, दरियाए दज्जला के किनारे चले जा रहे हैं। एक सेब दरिया की सतह पे बहता चला आ रहा है। आज हमें जो मिला खा लिया, पता भी नहीं करते हलाल है कि हराम है। आज लोग कहते हैं नमाज में लज्जत नहीं मिलती, कुरान की तिलावत में लज्जत नहीं मिलती। आज हमारी औलादें नाचने और गाने वाली हो गई। कभी आपने सोचा कहीं आपने अपनी बीवी को अय्यामे हमल में लुक़्मा हराम तो नहीं खिलाया है? कहीं आपने अपने बच्चे को हराम पैसे का दूध तो नहीं पिलाया है? कहीं आपने अपनी बेटियों को हराम की हरपी हुई जमीन के गल्ले तो नहीं खिला दिए हैं? इस्लाम के मुक़द्दस शहजादे और शहजादियों, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है मगर नस्ल लगाने वाला पूरा नहीं होता। ये दुनिया चंद रोजा है, ये चंद रोजा लज्जत के लिए मत खराब करो अपनी नस्लों को, मत खराब करो अपनी औलादों को, मत खराब करो अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी को। पाकीज़ा बनो पाकीज़ा, अच्छा बनो अच्छा, सुथरा बनो सुथरा, अच्छा खाओ लोगों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनो बीवी बाल बच्चों को अच्छा पहनाओ, खुद भी हदीस के हलाल खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ। सुनो सुनो, वो नौजवान कितना पाकीज़ा था, जवानी का आलम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद है, अय्यामे जवानी है, दरियाए दज्जला के किनारे बैठे हैं, खुदा की इबादत में मशगूल है, भूख जोरों की लगी है, हम तो दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। एक सेब दरिया की सतह पे बहता चला आया, साहब अचानक उठाया और भूख की शिद्दत ही खा लिया। खाने को तो खा लिया, अब याद आया ये सेब मेरा नहीं था, मैंने खा लिया। इस सेब के पैसे नहीं दिए, मैंने खा लिया। ये फल मेरा नहीं था, मैंने खा लिया। आज तो हम जहाँ से गुजरे दुकान पे गए, दुकानदार से बगैर पूछे कुछ उठा के मुंह में डाल लिया। साहब हम खेतों से गुजर रहे हैं, बगैर खेत के मालिक से पूछे उसका सामान उठाकर खा लिया। हम बागीचे से गुजर रहे हैं, बगैर बागीचे के मालिक से पूछे उसका फल तोड़कर खा लिया। आज साहब हमने खा लिया, फिर आकर के बीवी से मुलाकात की, अब हमारी नस्लों का आलम क्या होगा? लेकिन सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी है, एक सेब ही तो खाया था, निकल पड़े दरियाए दज्जला के किनारे। कहा पता लगाना होगा ये सेब आया किधर से है, ये सेब किस बागीचे से आया है। जिधर से ये बहता आ रहा था उसी जानिब चल पड़े। चलते चलते एक बागीचे में पहुंच गए। बागीचे में पहुंचा तो क्या देखा, एक बागीचा है, उस बागीचे में एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनका नाम अब्दुल्ला सौमई है। बड़े नेक और परहेजगार बुजुर्ग बैठे हैं। करीब गए, सलाम किया, कहा हुजूर ये बागीचा आपका है? कहा हाँ मेरा है। कहा हुजूर ये बागीचे में सेब है? कहा है। कहा हुजूर इसके दरख्त की कुछ डालियां दरिया में है? कहा है। कहा हुजूर उसमें से सेब गिर जाते होंगे? कहा गिर जाते हैं। कहा दरिया की सतह पे बह जाते होंगे? कहा बह जाते हैं। कहा हुजूर लोग उसे खा लेते होंगे? कहा खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी एक खा लिया, मैंने भी एक ही तो खाया था, मैंने भी एक खा लिया है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक। जो बच्चे वफादार होते हैं माँ बाप उसको अलग नहीं करते, माँ बाप उसको अलग नहीं करते। आप जो बच्चे वफादार हो, जो बहू वफादार हो, सास उसे दिल से दुआ देती है, जो बेटी वफादार हो माँ बाप उसे दिल से दुआ देते हैं। गौर से मेरी बात सुनना। कहा हुजूर मैंने भी एक खा लिया है, आप चाहे तो कीमत ले ले या आप चाहे तो जुर्माना मुकर्रर कर दे। उन्होंने भी कहा खाने वाले तो बहुत खाए मगर ये पहला शख्स है जो आज बदला देने के लिए आ गया है, अगर इसे छोड़ दिया तो फिर ये जवान हाथ से चला जाएगा। कहा हाँ
सजा थोड़ी सख्त है। क्या कहा? सजा थोड़ी सख्त है। कहा हुजूर आखिरत से बढ़कर दुनिया नहीं है, जो चाहे सजा मुकर्रर कर दे। कहा कि सुनो इस बागीचे की खिदमत करो, 12 साल बागीचे की खिदमत करो, 12 साल बाद देखा जाएगा माफ करना भी है कि छोड़ देना है। आज का इंसान होता तो कहता जो होगा देख लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद कहते हुजूर 12 साल में खिदमत करूंगा लेकिन माफ तो कर देंगे। कहा बेटा माफ कर दूंगा। 12 साल बागीचे की खिदमत की, 12 साल के बाद अब्दुल्ला सोमई सरकार बड़े पीर दस्तगीर के नाना आए। आने के बाद कहा नौजवान जरा मेहमान आए हैं, फल तोड़ करके ले आओ, पक्के फल लाना। गैर तोड़ने के लिए कच्चा भी तोड़ लिया, पक्का भी तोड़ लिया, टोकरी भरी लेकर चले आए। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम जब लेकर आए, अब्दुल्ला सोमई मुस्कुराए। कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो, इतना भी पता नहीं कि कच्चा सेब कैसा होता है, पक्का सेब कैसा होता है। कहा हुजूर एक सेब खाया था तो सजा अब तक मिल रही है। 12 साल से मैं बागीचे में हूँ, मगर आज तक मैंने इन निगाहों को कभी सेब की तरफ नहीं डाली है, मैंने कभी सेब को नहीं देखा है। हुजूर ने बागीचे की खिदमत की है, मगर मैंने कभी सेब में नजर नहीं डाली है। जब इतना सुनना था मचल गए। कहा नौजवान अगर ऐसी बात है तो एक सजा और बढ़ गई। कहा मेरी है, लगड़ी है, बहरी है, मेरी एक बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, आँख की अंधी है, बहरी है, उससे तुम शादी कर लो। कहा हुजूर लूली है ठीक है, लंगड़ी है ठीक है, बहरी अंधी सब चलेगी हुजूर, मगर दीनदार है, दीनदार है ना। कहा हाँ इस बात की गारंटी है। कहा हुजूर जिंदगी गुजार लूंगा मगर माफ कर देंगे। मैं लूली लंगड़ी बहरी के साथ अंधी के साथ जिंदगी गुजार लूंगा मगर माफ कर दीजिए। है मेरी कौम के नौजवानों, आज तो तुम हसीनो जमील लड़कियों से भी बगैर दहेज के शादी नहीं करते। आज तो तुम खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों से भी बगैर रिश्वत और मोटरसाइकिल और अपाची और स्कॉर्पियो बोलेरो के शादी नहीं करते। फिर भी तुम्हें दावा है मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि अब तक जो लोग साहब जहेज लेकर हैं, साहब वो धोखा दे रहे हैं समाज में, समाज में साहब अपनी तरफ से कहाँ चले गए। हाँ माशाअल्लाह है ना, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे या हबीब अल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना इब्न मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाअल्लाह बहुत शानदार हो गया। मैं ये कह रहा था, कहा कि हाँ मेरी बेटी अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, तू शादी कर ले। कहा कि सब चलेगा मगर दीनदार है ना। लेकिन आज साहब तुमसे पूछिए जो लोग दहेज लेकर निकाह करते हैं, रिश्वत लेकर निकाह करते हैं, अपाची लेकर निकाह करते हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो लेकर निकाह करते हैं, फिर बीवी से कहते हैं मुझसे ज्यादा कोई तुझसे प्यार करने वाला नहीं। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों ये धोखा है। पूछना कभी अपने उन शौहरों से अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मेरे बाप को भिखारी क्यों बना दिया, मुझसे मोहब्बत थी तो मेरी माँ के पायल क्यों बेचवा दिए, मुझसे प्यार था तो मेरे घर वालों की जमीन और जायदाद क्यों बेचवा दिए, अगर मुझसे मोहब्बत थी तो क्यों नहीं ऐसे निकाह किया जैसे मौला अली ने हजरत फातिमा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बातिल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तू झूठ कहता है कि तू बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी से मोहब्बत करता तो उसके बाप को भिखारी नहीं बनाता, उसकी माँ के जेवरात को नहीं बेचवाता, उसके भाई की प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद को बेचवा कर तू अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखता, बल्कि मोहब्बत होती तो फिर तू उस मोहब्बत के साथ रिश्ता करता। और से सुनिएगा, कहा कि हाँ कर लूंगा। सरकार अब्दुल्ला 100 मई में बागीचे में ही अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद ग्रामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का निकाह होता है। साहब रात की तन्हाई है, तशरीफ ले जाते हैं बीवी के पास। जो ही गए सोचा था अंधी होगी, लूली होगी, लंगड़ी होगी। जब कमरे में गए क्या देखा, एक पाकीज़ा खूबसूरत लड़की बैठी है, जिसके चेहरे से पूरा कमरा मनोवर है, रोशन है। समझ गए, देखा, मचल गए। लेकिन हमारी तरह नहीं जो अपनी बीवी के रहते हुए दूसरे की बीवी को देख करके ललचाई नजरें हो जाए। हमारी तरह नहीं थी उनकी नजरें। साहब वो जानते थे मेरी बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई हसीन नहीं है। जिससे मेरा निकाह हुआ और मेरी जिंदगी की राजकुमारी है, वही मेरी जिंदगी की राजकुमारी है। उससे ज्यादा हसीन और जमील कोई जिंदगी में औरत हो ही नहीं सकती है। मेरी मोहब्बत उसके लिए है, मेरा प्यार उसके लिए है, मेरी जवानी जिंदगानी मेरी कमाई उसी के लिए है। साहब उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरा निकाह हुआ वो तो कमरे में है नहीं। फौरन वापस पलटे, इतनी तेजी में दरवाजे से सर टकरा गया, खून के फव्वारे निकल पड़े। अब्दुल्ला 100 मई दरवाजे पे खड़े थे। कहा नौजवान क्या हुआ? कहा हुजूर आपने जिससे निकाह किया वो कमरे में नहीं, वो तो लूली लंगड़ी बहरी है जिससे मेरा निकाह हुआ। ये तो हुस्न जमाल की परी है। कहा मैं और कहा ये, कहा शहजादे बात सच कहते हो, बात सच कहते हो। ऐ शहजादे ये बात सच है। मैंने अपनी बेटी को लूली कहा, मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी कहा, मैंने अपनी बेटी को बहरी कहा, मैंने अपनी बेटी को अंधी कहा। ए बेटे मैंने बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि मेरी बेटी की आंखों में रोशनी नहीं है। मैंने अपनी बेटी को तो अंधी फकत इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक कभी गैर पे नजर नहीं डाली है। मैंने अपनी बेटी को लूली इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गैर शरई काम हाथों से नहीं किया है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, जब बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल बागीचे में रहे मगर दूसरे के सेब पे नजर न डाले, और माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पे नजर न डाले। जब ऐसे पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में हसीन गुलाब मिलता है, जिन्हें किनारे पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर वलीउद्दीन की नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, तौबा करो शराब पीने से, तौबा करो हराम खाने से, तौबा करो जहेज मांगने से, तौबा करो गलत काम करने से, तौबा करो बेहयाई बुराई से। अगर हम बुरे रहे तो हमारी औलादें बुरी हो जाएगी, हमारी बीवियां बुरी रही तो हमारे बच्चे बुरे हो जाएंगे। सुल्तान रज़ा आपको बताना चाहता है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, क्या ये हकीकत नहीं है? पिराने पीर दस्तगीर को जिस माँ ने जन्म दिया दुनिया में माए बहुत है, मगर लाओ फातिमा तो दूर की बात, एक फातिमा उम्मुल खैर ला करके दिखलाओ। आज इंजीनियर की माए है, कोई डॉक्टर की माँ है, कोई प्रोफेसर की माँ है, कोई राइटर की माँ है, कोई साइंटिस्ट की माँ है, लेकिन हर माँ बच्चे को जन्म पहले देती है और बच्चा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बाद में बनता है। मगर है फातिमा उम्मुल खैर, आपकी तुर्बत को सलाम, आपने गौसे आज़म को जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 18 साल का हाफिज़ कुरान है। सुनाओ मेरी माओ और बहनों, है कोई दुनिया में इतनी अच्छी औरत? मैं पूछना
चाहती हो, फिर जब इस्लाम में इतनी अच्छी औरतें मौजूद है, तुम क्यों सानिया मिर्जा के पीछे भागती हो? तुम क्यों नाचने और गाने वालियों के पीछे भागती हो? क्यों तुम नाचने और गाने वालियों के पीछे अपने कदम को बढ़ाती हो? यहूदियों ने कहा मुसलमानों के घरों में हमें जाना है। कहा तो फिर जाओगे कैसे? कहा टीवी बनाएंगे, मुसलमानों के घरों में पहुंचाएंगे। जब टीवी पहुंच जाएगी तो समझो कि यहूदी भी मुसलमानों के घरों में पहुंच जाएंगे। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मगर कभी तन्हाई में सोचिए। कहा टीवी पहुंच गई, हम पहुंच गए। कहो कैसे? कहा टीवी हमारी, चैनल हमारा, प्रोग्राम हमारा, किरदार हमारा, पैसे मुसलमानों के लगेंगे, आंखें उनकी बहू बेटियों की होंगी, उनके बच्चों की होंगी। हमारी बेटियां और बेटे टीवी स्क्रीन पर नाचेंगे, उनकी बेटियां देखेंगी। हम ड्रामा करेंगे, उनकी बेटियां देखेंगी। हम फिल्में बनाएंगे, उनकी बेटियां देखेंगी। हम मूवीज बनाएंगे, उनकी बेटियां और बच्चे देखेंगे। हम उन्हें बताएंगे फातिमा का लिबास न पहनो, ये लिबास पहनो जो हम रेप कल्चर के दिखला रहे हैं। हम जैसे पीते हैं वैसे पियो, हम जो पहनते हैं वो पहनो। बताओ मेरी कौम के शहजादे, जब तक टीवी हमारे घर में नहीं आई थी, आप जो भी लिबास लाते थे बीवी पहन लेती थी। हर बच्चा माँ बाप का वफादार होता था, हर बच्ची पर्दे में रहती थी, हर घर में कुरान की तिलावत होती थी। हर माँ बहन को ये याद होता था कि फजर की आज़ान का वक्त क्या है, ज़ोहर की आज़ान का वक्त क्या है, असर मगरिब की आज़ान का वक्त क्या है। नतीजा क्या निकला? जब से टीवी ने हमारे घरों में कदम रखा, यहूदियों ने कहा ऐ औरतों, कहाँ तुम बोझ भरी जिंदगी जी रही हो? कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, सबके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। मुस्तफा सबको उनकी जिंदगी पढ़ना जरूरी नहीं है। टीवी पर यहूदियों ने इस पे डिबेट किया और बताना शुरू किया कुरान को पढ़े जो मौलाना हो, कुरान को पढ़े जो हाफिज हो, कुरान को पढ़े जो कारी हो, कुरान को पढ़े जो नमाजी हो, कुरान को पढ़े जो औरत हज कर ली है या उसका शौहर हज कर लिया है। साहब नबी की सीरत या हजरत फातिमा की सीरत को पढ़े जो लोग मुत्तकी परहेजगार हो। बाकी लोग कहा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरे छोड़िए मौलवी मौलाना से काम चला दीजिएगा। नतीजा क्या निकला? आज हमारी औलादें मुसलमान तो है मगर किरदार यहूदियों वाला आ गया, यहूदियों वाला आ गया। आज क्या ये हकीकत नहीं है? हमारे यहाँ शादी के दिनों में साहब एक तरफ मिलाद की महफिल खत्म होती है और दूसरी तरफ डीजे पे नाच शुरू हो जाता है। एक तरफ निकाह इबादत है, इबादत की महफिल को आज नाचने की महफिल, गाने की महफिल लोगों ने बना दिया। आज किसी नौजवान से कहिए अपनी शादी में नाच मत करो, उसे अच्छा नहीं लगता। कहिए डीजे मत करो, उसे अच्छा नहीं लगता। किसी मुस्लिम बहू बेटी से कहिए तुम अपने घरों में शादियों में गीत गाना नाच मत करो, बल्कि सैयदा फातिमा की तरह कुरान की तिलावत करो, बिछाकर नमाज पढ़ो। साहब इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये बुरा मान जाती है। आज मीडिया कॉलेज में सर्वे करती है किसे निकाब पसंद है, किसे निकाब पसंद नहीं है। साहब इस्लाम के इतना सुल्को सितम, हम गैरों को इस्लाम समझाए या अपनों को इस्लाम समझाए? आइए दो तीन बातें अगर आपकी इजाजत हो तो बता दूं। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अगल बगल में जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगा दीजिए, वरना जब जाएगा जलसे से घर, माँ पूछेगी जलसे में क्या सीख करके आया, तो कहेगा हम तो सो गए थे जब तकरीर हो रही थी। अब साहब को सीखा ही क्या? सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं मगर कोई इल्म माँ के बराबरी में नहीं ला सकता, कोई इल्म बाप के बराबरी में नहीं ला सकता। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आमिना के लाल है, मेराज की शब में तशरीफ ले जा रहे हैं। आका जब मेराज की शब में गए, लड्डू बटा था लड्डू, पहुंची है लड्डूया बटा था लड्डूया, लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया आका की ताज़ीम में खड़े हो गए। साहब गौर से सुनिएगा, सारे अंबिया आका की ताज़ीम में हाथ बांधे खड़े हैं। आदम भी खड़े हैं, मूसा भी खड़े हैं, ज़करिया भी खड़े
کھڑے ہیں، یحییٰ بھی کھڑے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہیں. جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، ذرا اس نبی کی زندگی دیکھیں. مسجد نبوی شریف کی زمین ہے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں آقا بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں ایک مقدس خاتون، ایک پاکیزہ عورت مسجد نبوی شریف میں چلی آ رہی ہے. جو ہی وہ تشریف لاتی ہے، آقا کی نظر ان پر پڑتی ہے. فوراً آقا اس عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس عورت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر دنیا کا کوئی انسان کہتا ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے تو سلطان رضا کا چیلنج ہے، نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوئی بکلٹ لا کر دکھلاؤ، کوئی کتاب چلا کر دکھلاؤ. مگر اٹھاؤ قرآن. 1450 برس پہلے اللہ نے قرآن میں سورہ نساء نازل فرما دیا، یعنی عورتوں کے نام کی صورت. کبھی اپنے مقام کو غور سے سننا. عورت کی عزت میں تعظیم میں کھڑے ہیں. یوں آقا کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، سارے انبیاء ساری دنیا جو آپ کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے، یہ میرے آقا یہ کون پاکیزہ ہستی ہے جن کی تعظیم میں میرا پیغمبر کھڑا ہے، جن کی تعظیم میں میرا رسول کھڑا ہے، جن کی تعظیم میں میرے آقا کھڑے ہیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کیا تم اپنی ماؤں کی عزت اور قدر نہیں کرتے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا جائے. آقا فرماتے ہیں تیرا پیغمبر جس عورت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت اماں حلیمہ ہے، جن کی تعظیم میں میرا پیغمبر کھڑا ہو گیا ہے. سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، آپ ہم سب نبی کے غلام ہیں، آپ بتاؤ ایمانداری سے کیا ہم نے بھی کبھی ماں کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی باپ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی ماں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم انجینئر ہیں، عالم مولانا مفتی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ہیں، سب ہیں، لیکن ہمارے سامنے ہم چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ماں نیچے بیٹھی ہے، ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، ماں نیچے بیٹھی ہے، ہم اپنے بیٹھے ہیں، ماں آ گئی، کوئی تعظیم نہیں. سلطان رضا کہنا چاہے گا غیرت ہماری کہاں ہے؟ جب سوچے صرف نعرہ لگا لینا زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، صرف نبی کا کلمہ پڑھ لینا زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہہ لینا زندگی کے لیے کافی نہیں ہے. ضرورت اس بات سے کی ہے کہ نعرہ بعد میں لگے، کردار مصطفیٰ کا چراغ زندگی میں پہلے جل جائے، تاکہ زمانہ دیکھے تو کہیں یہ غلام مصطفیٰ ہے. آقا اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے جن کی تعظیم جب تک کیا ہے تب تک ہوئے نا آپ کے آج کے پروگرام آج آقا اتنا ہی نہیں کیا، آقا نے آقا فوراً اپنے کاندھے سے چادر مبارک اتارتے ہیں، نوری چادر سے زمین پہ بچھاتے ہیں، کہتے امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے. اتنے میں حضرت تائی حلیمہ کے شوہر بھی چلے آئے. اللہ اکبر. ان کا آنا تھا، حضرت تائی حلیمہ کے شوہر بھی چلے آئے. آقا ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، انہیں بھی چادر تطہیر اور چادر مبارک پہ جگہ دیتے ہیں. سلطان رضا کہنا چاہے گا ہم اپنے چیمبر میں بیٹھے ہو، ہم اپنے اسکول میں بیٹھے ہو، ہم اپنے بزنس کی گدی پہ بیٹھے ہو، لیکن باپ آ جائے تو کھڑے ہو جانا، ماں آ جائے تو کھڑے ہو جانا. سنو سلطان رضا یہ پیغام دیتا ہے، آج کے اس جلسے سے دوسرا پیغام لے کر جاؤ. جب تم اپنے گھروں کو جانا اور جا کر کے جانا، تیری بیوی بھی تیرے بغل میں بیٹھی ہو، تیرے بچے بھی تیرے بغل میں بیٹھے ہو، اور سنو تیرے سامنے تیری بوڑھی ماں آ جائے، تیرے سامنے تیرا بوڑھا باپ آ جائے، فوراً ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، فوراً باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. بیوی سے کہنا تم بھی کھڑی ہو جاؤ، بچوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. تیری بیوی اور تیرے بچے تجھ سے پوچھیں گے بتا تو بوڑھے ماں باپ کتنی تعظیم کیوں کر رہا ہے؟ کہا پگلی میں تو جانتا نہیں تھا، مگر کل جلسے میں پتا چلا کہ ہمارے نبی تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ تو میری وہ ماں ہے جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، مجھے 2 سال دودھ پلایا ہے. یاد رکھنا اسلام کے مقدس شہزادوں، قرآن عظیم کے قریب چلو. یہ قرآن تو بتا ماں باپ کا
अदब कैसे करे। कुरान ने कहा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद करना, जवानी को नहीं बचपन को याद करना। क्यों? कहा तुम देखना जब तू बच्चा था चलने के लायक नहीं था, तेरी माँ ने चलाया है। जब तू खाना नहीं जानता था तेरी माँ ने खिलाया है। जब तू बिस्तर पे पड़ा रहता था तेरी माँ ने तेरी गलासों को साफ किया है। जब तू रोता था तो तेरी माँ ने तुझे मनाया है। जब तू कमाने के लायक नहीं था तेरे बाप ने तुझे कमा करके खिलाया है। आज तेरी माँ थोड़ी सी नाराज हो गई तो तू कहता है छोड़ दे, तेरा बाप थोड़ा सा नाराज हो गया तू कहता है छोड़ दे, तेरी दीदी तुझसे कहती है तेरे माँ बाप कुछ नहीं करते पड़े रहते हैं, तो बीवी की शिकायत सुनकर तू माँ बाप से नाराज हो जाता है। गौर से सुनना, आज तू माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहा है। अगर बचपन में तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया होता तो क्या होता, तेरे बाप ने तुझे छोड़ दिया होता तो क्या होता। ये तेरी जवानी उसी माँ की वजह से है, ये तेरे बाजुओं में ताकत उसी बाप की वजह से है, ये तेरी हड्डियां मजबूत उसी माँ की वजह से है। सुनो, जब तू बच्चा था रोता था तो तेरी माँ ने नहीं छोड़ा, जब तू दूध नहीं पीता था फिर भी तेरी माँ ने तुझे नहीं छोड़ा, तू रात की तन्हाई में सो जाता था फिर भी तुझे माँ ने तुझे नहीं छोड़ा। जब तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थी तेरी माँ ने सहारा दिया, जब तेरे जिस्म में ताकत नहीं थी तेरी माँ ने तुझे सहारा दिया, जब तेरी ज़बान में ताकत नहीं थी तेरी माँ ने तुझे सहारा दिया। सुन, तेरी बीवी लाख कहे मगर बता देना कुरान ने कहा, ऐ नौजवानों बचपन में जब तू मजबूर था तो तेरी माँ और तेरे बाप ने तुझे नहीं छोड़ा। आज वो कमजोर हो गए, उनके आंखों की रोशनी खत्म हो गई, उनके बाजुओं की ताकत खत्म हो गई, उनके पाँव की ताकत खत्म हो गई। तो कुरान कहता है बचपन में माँ बाप ने तुझे नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में तुम भी कभी माँ बाप को मत छोड़ना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रे अगर कोनो उठाई लड़का तो उसको गरिया लगे वो गई नहीं फना। हज़रते वालिदैन, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए कितने नौजवान हैं जो कल से अपनी माँ की इज्जत करेंगे? जरा हाथ उठा करके बता दीजिए। माशाअल्लाह, सारे नौजवान करेंगे अपनी माँ की इज्जत। माशाअल्लाह, मैंने ये समझा, मेरी तकलीफ मौजूद हुई। आज कोई मिसाल देता, मौलाना बड़ी इज्जत है, मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, बड़ा तकब्बुर है, मैं माँ के कदम को कैसे चूमूंगा? सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है कितना हूँ बड़ा कि इल्म वाला होगा? इमाम अहमद रज़ा खां से बड़ा इल्म वाला नहीं है, आला हजरत से बड़ा इल्म वाला नहीं है। बता ईमानदारी के साथ, आला हजरत को जब दूसरी बार हज करने जाना था तो मुंबई से माँ को खत नहीं लिखा, इजाजत लेने के लिए बरेली शरीफ आ गए। आने के बाद इंतजार करने लगे, अपनी जान असर की नमाज पढ़कर अपने हुजरे में दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रही थी। आला हजरत चुपके से जाते हैं, हम और आप होते तो आकर कहते माँ को बुलाओ, बेटा को भेजते जाओ जाकर कहना मैंने बुलाया है। आहा, मेरा बेटा जाकर माँ से कहता चलिए अब बुला रहे। आहा, माँ इतना प्यार करती है, बेटा जब बुलाए दौड़ के आ जाती है। लेकिन आला हजरत ने क्या सिखलाया? मसलके आला हजरत सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं, बल्कि आला हजरत के मसलक पे चलना सीखिए, हजरत के मसलक पे चलना सीखिए, उस तरीके को अख्तियार कीजिए। आला हजरत ने क्या किया? ये नहीं कहा कि जाओ कहना अहमद रज़ा ने बुलाया है, नहीं, इंतजार करते रहे। जब असर की नमाज पढ़कर वालदा अपने हुजरे में दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रही थी तो आला हजरत चुपके से दाखिल हुए। कैसे दाखिल हुए? चुपके से। प्यार से बोले कैसे दाखिल हुए? चुपके से। क्यों? कुरान ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब आप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना। आला हजरत चुपके से दाखिल हुए और अपनी पेशानी को माँ के कदम में रख दिया। रख दिया पेशानी को। किसने रखा? हजरत ने नहीं, हजरतों ने नहीं, हजरतों के हजरत आला हजरत ने आला हजरत ने रख दिया। पेशानी रगड़ने लगे। माँ समझ गई अहमद रज़ा आ गया। सुभान अल्लाह। माँ समझ गई। मैंने कहा या इमाम आपने ऐसा क्यों किया? कहा ताकि जमाना जान जाए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आज सुल्तान रज़ा पूछना
पूछना चाहता है। आज इस्लाम की पढ़ी लिखी बहुएं वीआईपी कहती है, अपनी सास से कहती है मेरा शौहर नहीं कमाता तो तू कहाँ से खाती, मेरा शौहर नहीं कमाता तो तू अपने ससुर से कहती है तू कहाँ से खाता। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है ये तेरी बोली नहीं, क्या तुझे पता नहीं है तेरी बोली तो ये होनी चाहिए। तू कहता है मेरी सास अल्लाह तुझे सलामत रखे, हाय मेरे ससुर अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर किसी ने अपने बेटे को जुवानी नशेली गजेरी बना दिया, अल्लाह का करम है आपने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया। अगर आपने अच्छा नहीं बनाया होता तो ना आपकी जिंदगी अच्छी करती ना मेरी जिंदगी अच्छी करती। अब होना तो ये चाहिए, अरे बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, हर बहू की जबान पर ये होना चाहिए तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप है। गौर से सुनिएगा, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में रहती थी, पढ़ती थी। वहां से उन्होंने चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए, दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है? सुल्तान रज़ा पूछना चाहता। चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी इंदिरा मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन और मुताला किया, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी को पढ़ा, मगर ये मेरी बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरते फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा हक है, हक है। कहा ये कौन है? कहा ये मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। सुभान अल्लाह। इंदिरा गांधी ने खत लिखा, बाबूजी ये बात ठीक है मगर उनकी उम्र बहुत कम है, 24 से 25 साल, और महिलाओं महान महिलाओं पर यानी दुनिया की सबसे कामयाब औरतों के मजमून लिखना है तो उनकी उम्र तो बड़ी कम है। तो चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है, सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए, बेटी ने तो बाप की इज्जत सलामत है। हर शौहर को एक कामयाब और नेक बीवी चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। और दुनिया में हर बच्चे को एक कामयाब माँ चाहिए, दुनिया की सबसे पहली दरगाह माँ की गोद है। कहा मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने दुनिया में बीवियां बहुत देखी मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। मैंने दुनिया में माँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। हक है, हक है। माँ नहीं देखी। अब आप लोगों को फैसला करना है, आगे बोले इजाजत है? अरे सुनना चाहते हैं आप लोग तो मौलाना लोग कहेंगे आप लोग भी कमेटी वालों से तो ऐसा खतीब बुलाया कि रात के 2 भी बज गए, इनको फिक्र ही नहीं है खत्म कब करेंगे, है ना? जाहिर सी बात है, इजाजत है तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी ऊंची बोलिए ताकि अगल बगल वाले जग जाए, जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या हबीब अल्लाह। तो दुनिया की सबसे कामयाब औरत हजरत फातिमा ज़हरा है। अब साहब सबसे पहले बेटी के बारे में सुन लीजिए, बेटी हो तो फातिमा की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह, माँ हो तो फातिमा की तरह। ये कौन है सैयदा फातिमा? आला हजरत ने लिखा, सैयदा फातिमा सैयदा आखिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। गौर से सुनिएगा साहब, ईमानदारी की बात तो यही है, दुनिया में सारी औरतें एक तरफ और तन्हा हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी इस जमाने में इस सदी में एक तरफ। आप उठा करके देखें हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह दुनिया की सबसे हसीन और जमील औरत हजरत सैयदा हजरत हसीन और जमील मर्द हजरत सरकार मौलाए कायनात से कर दिया। साहब सुनना उनके इल्म का जवाब, न उनके तक़वे का जवाब, न उनके तक़द्दुस का जवाब। दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हजरत मौलाए कायनात से हजरत फातिमा ज़हरा का रिश्ता होता है। साहब कुछ दिन ही शादी के गुजरे थे, आप जब शादी के वाक़यात पढ़ेंगे तो ये बात तो अलग है, इतनी पाकीज़ा हस्ती थी, इतनी बावकार हस्ती थी। आज हमारी शादियों में
न जाने कितने हंगामा आराइयां होती है। आज सुल्तान नज़ा पूछना चाहता है, शादियों को हमने इतना बोझ बना दिया, मुश्किल बना दिया कि आज इस लड़के और लड़की की शादी 10 साल पहले होनी चाहिए, 10 साल बाद होती है। इतनी बड़ी वलीमा पार्टी हम करते हैं, न पैसा होगा न पूरे गाँव को खाना खिलाएगा, न पैसा होगा न पूरे रिश्तेदारों का कपड़ा खरीदेगा, न पैसा होगा न इतने बारातियों को लेकर के जाएगा। बताओ, अगर हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, अगर वो लड़की भाग कर किसी के साथ चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और लड़का कहीं ज़ना का मुर्तकिब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेशक यही समाज इसका जिम्मेदार है, जिसने आज शादियों को महंगा कर दिया, जिसने दहेज की वजह से आज शादियों को इतना लानती बना दिया है। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादे और शहजादियों सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह होता है। कुछ दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा मैदान जिहाद में जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना तैयार कर दीजिए। अल्लाह के नबी की मुक़द्दस बेटी है हज़रत फातिमा ज़हरा, घर में जितना आटा था सारे आटे की रोटियां तैयार कर देती है और रोटियां तैयार करके सरकार मौलाए कायनात को देती है। ऐ मेरे शौहरे नामदार, इसे ले जाइए, आप भी खाइएगा और अपने साथियों को भी खिला दीजिएगा, बाबा जान को भी खिला दीजिएगा। सरकार मौलाए कायनात सारी रोटियां लेकर चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद वापस आते हैं। मैदान जंग में जीत है, लबों पे मुस्कुराहट है, घर तशरीफ लाते हैं। दोनों की भूख लगी है। सुनना इस्लाम के मुक़द्दस शहजादे और शहजादियों, आज तुम रोते हो तेरे घर में गरीबी आ गई है। तेरी बीवी रोती है कि मेरा शौहर गरीब हो गया है, शौहर रोता है बीवी गरीब हो गई है। हम रोते हैं हमारा घर और घराना गरीब हो गया है। गरीबी हमने नहीं, गरीबी तो उन्होंने देखी है, गरीबी तो उन्होंने देखी है। आज लोग कहते हैं इस्लाम पे चलना कठिन है, इस्लाम पे चलना आज कठिन नहीं, इस्लाम पे चलना उस वक्त कठिन था। उस वक्त मुश्किल था जब खाने के लिए, खाना पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था, पहनने के लिए लिबास मौजूद नहीं था, और खजूर की गुठलियां चूसकर सहाबा जंगे बदर में लड़ गए और इस्लाम को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कराया। आज तो पूरी दुनिया में जुल्म हो, हमारे दिल, हमारा दिल नहीं पी सकता, बस सोचते भी नहीं कि हम हक की मुआफ़िकत में आवाज बुलंद करें। आज त्रिपुरा में हो रहा है, कौन है जो आवाज बुलंद करे? साहब आज पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुआ, साहब पूरी दुनिया में हम पे जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। हमने कभी एहसास किया कि हम इसके खिलाफ मुखालफत करें, अपने आईडी के जरिया या साहब सोशल मीडिया के जरिया, जिसके जरिया भी हो, हम अपनी हाजिरी इसकी मुखालफत में दर्ज कराएं। साहब नहीं, हमारा दिल नहीं बसीता, लेकिन साहब वो थे, वो तो वही थे और जानते थे हम अपनों की भी हिफाजत के लिए है, गैरों की भी हिफाजत के लिए है। साहब उनकी जिंदगी का मकसद यही था कि न जुल्म, न जालिमों को छोड़ेंगे, न मजलूमों का साथ छोड़ेंगे, जालिमों की भी इस्लाह करेंगे, मजलूमों की भी इस्लाह करेंगे। सरकार मौलाए कायनात 15 दिनों के बाद जब वापस आई, कहा फातिमा जोरों की भूख लगी है, जरा कुछ दस्तरखान बिछाओ, कुछ खाना लगा दो। सैयदा फातिमा ज़हरा दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है और बैठकर आंखों में आंसुओं के कतरात है, रो रही है। कौनैन की शहजादी है। सरकार मौलाए कायनात ने पूछा, फातिमा रो क्यों रही है? कहा जिसका शौहर 15 दिनों बाद आया हो और उसकी बीवी के पास इतना आटा भी नहीं हो कि रोटी का टुकड़ा। सोचो इस्लाम की शहजादियों, क्या तेरे घर में भी कभी इतनी गरीबी आई है? इतना आटा नहीं कि रोटी का एक टुकड़ा बना सके, मगर फज्र की नमाज नहीं छूटी, कुरान की तिलावत नहीं छूटी, पर्दे की आवाज नहीं छूटी, सारा जहान सलामत, सब कुछ सलामत। और सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों कहती है, जिसका शौहर 15 दिनों के बाद आया हो और एक रोटी मेरे पास न हो तो उसकी बीवी शौहर की मोहब्बत में रोएगी नहीं तो क्या करेगी? क्या तुम भी कभी अपने शौहरों के दुख का एहसास करती हो, उसके गम का एहसास करती हो? तेरा शौहर कितनी मेहनत से प्रदेश से पैसे कमाता है, तेरा शौहर कितनी मेहनत से मुंबई में पैसे कमाता है, दिन भर कितनी मेहनत और मशक्कत से अपनी जान की बाजी लगाकर पैसे कमाता है, उन पैसों को तू कहाँ खर्च कर देती है? सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब रोया, ये ज़मीन कांप गई, आसमान कांप गया। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा
जिस दिन से आप गए उसी दिन से आज तक फातिमा ने चूल्हा नहीं जलाया, आज तक फातिमा ने चूल्हा नहीं जलाया है। आज हमारे घरों में एक दिन चूल्हा बंद हो जाए तो हंगामा हो जाएगा। सरकार मौलाए कायनात ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा कहती है, ऐ अली मैं रो रही थी, बात समझ में आ गई, आप क्यों रो रहे हैं? कहा जिसकी बीवी 15 दिन से भूखी हो, उसका शौहर खा रहा हो, वो बीवी की मोहब्बत में क्यों नहीं रोए? शौहर हो तो मौला अली की तरह और बीवी हो तो हज़रत फातिमा की तरह। कहा इतनी मोहब्बत के शौहर बीवी के भूख को कम को एहसास करके रो रहा है और बीवी शौहर के तकलीफ को एहसास करके रो रही है। जब यही एहसास जिंदा हो जाए तो मोहब्बत ज़ौज़ैन कहते हैं, और यही मोहब्बत मर जाए तो साहब फिर फरीक़ैन कहते हैं। आज साहब मामला आज हमारी निगाहों के सामने है। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अपने शौहर से टूट कर प्यार करो। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादी अपनी बीवियों से टूट कर प्यार करो। माँ से भी प्यार करना, बीवियों से भी मोहब्बत करना, इस्लाम दोनों से प्यार करने का दर्स दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी है हज़रत मौलाए कायनात, कहते हैं फातिमा ठीक है 15 दिनों से घर में खाना नहीं था, कम से कम मैं क्या खबर कर दिया, सुनिए मैं क्या खबर कर दिया होता। सैयदा फातिमा कहती है, हाँ अली इस मेरे शौहरे नामदार, मैं क्या खबर कर देती, खाना मिल जाता। मगर जब मैं घर से चली थी तो मेरे बाबा ने मुझे कहा था, बेटी कुरान की इस आयत को याद रखना। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। हे बेटी अपने शौहर की इज्जत और आबरू और उसके घर के पर्दे का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। ऐ मेरे शौहर, मैं अपने मायका खबर कर देती, मुझे खाना तो मिल जाता, मगर मेरे मायका वाले जान जाते कि अली के घर में गरीबी आ गई है, फातिमा के ससुराल में गरीबी आ गई है। कहा पड़ोसियों से, कहा पड़ोसी भी जान जाते कि अली के घर में गरीबी आ गई है। फातिमा भूखे रहना तो गवारा कर सकती है, मगर ससुराल की बात किसी से करना और ससुराल की गुरबती किसी से प्यार करना गवारा नहीं कर सकती। ओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम भी किसी के घर बहू बन के जाती हो या किसी के घर बहू बनकर आप आई हो। आज मोबाइल फोन का जमाना है, शादी की एक रात भी नहीं गुजरती है कि तुम मोबाइल उठाकर ससुराल की सारी बातें अपनी माँ से कह देती हो, अपने बाप से कह देती हो, अपनी सहेलियों से कह देती हो, दूसरी औरतों से कह देती हो। ये किरदार इस्लाम नहीं है, ये किरदार फातिमा ज़हरा नहीं है। मुहर्रम में सिर्फ फातिहा कराती हो, सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा कराने वालियों, फातिहा भी कराओ, उससे पहले सीरत फातिमा का चिराग अपनी जिंदगी में जलाओ, ताकि सुनो कभी भी ससुराल की बात मैका में मत कहना और मैका की बात कभी ससुराल में मत कहना। बताइए अगर माशरा ऐसा हो जाए तो, अरे कुछ बोलिए, कोई खराबी होगी, कोई खराबी होगी? अब आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, सुल्तान रज़ा एक ऐसा नुस्खा लेकर आया है, अगर इसे हमारे घर के चिराग में, आंगन में जला दिया जाए, इस चिरागे मोहब्बत को, तो हर घर जन्नतुल फिरदौस का गहवारा हो जाएगा। जानते हैं साहब, आज हमारी घर की औरतों के अंदर मोहब्बत नहीं रह गई साहब। आज हमारी घर की औरतें आपस में बहने बन के जिंदा रहना नहीं चाहती। लेकिन सुनो शहजादी ये इस्लाम है, कौनैन के कौनैन की शहजादी है। साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा ये मेरी बागी है, फिजा इसे लेकर के जाओ, मगर मेरी बेटी ये फातिमा इसे नौकरानी बना के न रखना, बागी बना के न रखना, इसे बहन बना लेना। हजरत फातिमा ज़हरा फिजा को लेकर घर जाती है। आका का दस्तूर था, जब सैयदा फातिमा आती तो आका बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते, और जब आका जाते तो सैयदा फातिमा बेटी बाप की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती। आज हमारे घरों में ये मोहब्बत, ये सुन्नत जिंदा नहीं है। आज जरूरत है इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए। आज लोग अपनी बेटी को बेटी समझते हैं, लेकिन बहुओं को बेटी नहीं समझते। जिस तरीके से आपकी बेटी बेटी है, वैसे ही दूसरे की बेटी भी बेटी है। जितनी इज्जत आप अपनी बेटी की करते हैं, उतनी ही इज्जत आप अपने घर में बहुओं को भी करें। आज अगर हमने ये समाज नहीं बनाया तो
आने वाला दिन हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। बुराइयों को मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कहा फातिमा पिज़्ज़ा को पकड़ बना करके रखना। हज़रत फातिमा कहते हैं हाँ अब्बा हुजूर रखूंगा। कुछ दिनों के बाद आका मिलने के लिए गए। शहजादी इस्लाम के जब करीब गए क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा अपने हाथों से चक्की चला रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा बेटी फातिमा आप चक्की चला रही है, पिज़्ज़ा कहाँ है? कहा अब्बा हुजूर पिज़्ज़ा घर में है। कहा पिज़्ज़ा घर में है और आप चक्की चला रही है, क्या तबीयत खराब है? कहा नहीं अब्बा हुजूर पिज़्ज़ा आराम कर रही है। आका मुस्कुराए, कहा बेटी पिज़्ज़ा आराम कर रही है और आप चक्की चला रही है, मामला समझ में नहीं आ रहा है। साहब हज़रत फातिमा मुस्कुराती है और कहती है बाबा जान आप ही ने तो कहा था ये बेटी फातिमा पिज़्ज़ा को नौकरानी नहीं बहन बना के रखना। मैंने पिज़्ज़ा को बहन बना लिया और हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए। कल पिज़्ज़ा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। आज हमारे घर में 4 भाई हैं, अगर चारों की बीवियां आपस में बहन बन जाए और हर औरत अपने हिस्से की काम बांट ले, सास अपने हिस्से की काम, ननद अपने हिस्से की काम, बड़ी बहू अपने हिस्से की काम, छोटी बहू अपने हिस्से की काम, कसम खुदा की जिस दिन सीरत फातिमा ज़हरा का ये चिराग हमारे घर के आंगन में जल गया, हमारा घर नफरतों का गहवारा नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। ये साहब मेरी तकरीर नहीं एक तहरीक होती है और एक तहरीक के तहत फकीर तकरीर करता है पूरे भारत में। मैं जानता हूँ मेरा मिशन क्या है, मैं जानता हूँ मेरा मकसद क्या है, मैं जानता हूँ इन जलसों का मकसद क्या है। तभी तो मेरे शायख हुजूर ताजुश शरिया को एक शख्स ने लिफाफा दिया और कहा हुजूर ये लिफाफा कबूल फरमाए। कहा कि ठीक है अपने पास रखो, ये बताओ मुझे तो लिफाफा देते हो लेकिन अपने वालिद की खिदमत करते हो कि नहीं करते? सुभान अल्लाह। कभी माँ बाप को भी लिफाफा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीर साहब को बहुत लिफाफा देते हैं और माँ बाप को ईद में भी लिफाफा देने की तौफीक नहीं होती। गलत? अरे बोलिए गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? हुजूर ताजुश शरिया ने कहा बेशक पीर की मोहब्बत जरूरी है लेकिन इससे पहले घर में जो तुम्हारे 2 पीर हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप उनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए बेशक इसलिए साहब याद रखिएगा पहले माँ और पहले बाप इन दोनों की मोहब्बत आपके लिए जरूरी है। ऐसा न हो कि बीवी की मोहब्बत में माँ को भूल जाइए, माँ की मोहब्बत में बीवी को भूल जाइए, पीर की मोहब्बत में माँ बाप को भूल जाइए, माँ बाप की मोहब्बत में पीर को भूल जाइए। यही माँ बाप से भी प्यार कीजिए, पीर मुर्शिद से भी प्यार कीजिए। आप लोग मैं तो कहता हूँ हम लोग सिर्फ चादर चढ़ाने वाले बन गए हैं। मैं कहता हूँ आला हज़रत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा 5000 की चादरें चढ़ाने वालों, 1 लाख की चादरें चढ़ाने वालों, 500 की चादरें चढ़ाने वालों, 50 रुपए की फूल की चादरें बुजुर्गों की तुरबत पर चढ़ाओ और 450 रुपए बचाकर उन बुजुर्गों के नाम पर किसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कापी खरीद दो, कलम खरीद दो, उनके खाने का इंतजाम कर दो। जब जब वो बच्चा तेरे पैसे से पढ़ता रहेगा कसम खुदा की ताजुश शरिया की रूह खुश होती रहेगी, आला हज़रत की रूह खुश होती रहेगी, गौसे आज़म की रूह खुश होती रहेगी। आप गौसे आज़म का लंगर बनाना है ना बनाओ, लेकिन किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो जरा उसमें भी कभी बना दो। हक है ना, कभी उसमें भी बना दो, कभी उसमें भी बना दो। अच्छा साहब हिंदुस्तान के राजा कौन है? हजरत ख्वाजा है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के राजा है। उनके वालिद ग्रामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन। तो काम क्या था, ड्यूटी क्या थी? माँ की खिदमत। जब नमाज का वक्त होता मुअज्जिन अज़ान देता वुज़ू करते माँ के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते। माँ से कहते अम्मी जान आप राजी हैं मस्जिद में जाऊंगा? साथियों ने कहा हुजूर जब अज़ान होती है आप माँ के सामने खड़े फिर मस्जिद जाते हैं? कहा हाँ मैंने आका की हदीस पढ़ी है, आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं होते इससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा गौर से सुनना, कहा पहले मैं अपनी माँ को खुश करता हूँ इसलिए कि जब माँ खुश हो जाएगी मस्जिद जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा खुश हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे,
खुश हो जाएंगे। आजकल लोग माँ को नाराज करके चादरें चढ़ाते हैं, माँ बाप को नाराज करके पीर से दुआएं लेते हैं, तो न उधर दुआ कबूल होती है ना इधर दुआ कबूल होती है। इसलिए मेरे दोस्तों आखिरी बात सुनिए, मेरी कौम की माँ बहनों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाली बनाओ, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने वाली बनाओ, अपने बच्चों को दीदार बनाओ, अपने बच्चों को नेक बनाओ, अपने बच्चों को अशार बनाओ। तुम कहोगी कैसा बनाए, कहा ऐसा बनाओ जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा ने, जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे को बनाया है। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको देखता हूँ आप कुरान पढ़ती रहती है, नमाज पढ़ती रहती है। माँ ने कहा हाँ बेटे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मुसीबत आए तो नमाज पढ़ना, और कुरान और अहले बैत ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए मैं न नमाज छोड़ सकती न कुरान छोड़ सकती। बेटे ने कहा माँ मुझे क्या करना है, कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। ऐ लोगों, मसलक में मसलक आला हजरत से दोस्ती करो, फिर घरों में जाओ तो नमाज से दोस्ती करो, कुरान से दोस्ती करो, नबी से प्यार करो, नबी से यावरी रखो। याद रखना हजरत इमाम हुसैन ने ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत के मैदान करबला में 72 जख्म खाने के बाद जब घोड़े से गिरे तो सजदे की हालत में बताया। सुनियो, सिर्फ हुसैन के नाम की मरतबत सुनकर मचलने वालों और पैसे उड़ाने वालों, सिर्फ मचलो मत इमाम हुसैन की तरह सजदा करने वाले थे। इमाम हुसैन ने तो 72 जख्म खाकर सजदा नहीं छोड़ा, और हम तो अपने घरों में सो के रह जाते हैं, आज़ानें होती मस्जिदों को नहीं जाते। बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाजें पढ़ेंगे ना, बोलिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे ना। माओ बहनों तुम भी ये सोच लो कि इंशाअल्लाह तुम भी नमाजें पढ़ोगी, नमाजें पढ़ना के पाबंद बनो। सैयदा फातिमा ने बेटे को ऐसा कुरान सिखलाया कि हर बच्चा सर तन से लगा रहे तो कुरान पढ़ता है। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ने लगे। बताया माँ उस दिन से जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया। जख्म खाता रहा मगर सजदा करता रहा, और गर्दन सर तन से जुदा है फिर भी कुरान की तिलावत करता रहा। मेरे दोस्त याद रखिए, जिंदगी में सारी बातें एक तरफ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ईद और बकरीद मनाते अपनी नस्लों को बुजुर्गों का तज़किरा, बुजुर्गों का जिक्र नहीं सुनाते, साफुर की औलादें यहूदी और नसरानियों की तरह हो जाती है। आले सऊद ने सऊदी अरब में क्या किया साहब, जब से आले सऊद की हुकूमत आई बुजुर्गों का मिलाद बंद, नबी का मिलाद बंद, नबी पे सलाम बंद, बुजुर्गों के तज़किरे बंद, उनकी औलादें भूल गई इस्लाम क्या है, और अरब में कितनी मुशक्कत और सहाबा की कितनी शहादतों से इस्लाम फैला है। नतीजा क्या निकला, उनकी औलादें मस्जिदें बनाने के बजाय, मदरसे बनाने के बजाय